Hello everyone. Welcome back to Easy Learning with Mrs. Geeta Malhotra. Children, today we are going to do the first poem of your Beehive book, The Road Not Taken. Children, this book is written by an American poet, Robert Frost, and it was published in 1916 in a collection entitled Mountain Interval. It is about the journey of life and contains a deep meaning, hidden meaning. Sometimes we also choose something, we also take any decision. Further, we are also baffled whether we have taken correct step or not. We are right on our own part, we have taken right decision or not. Such dilemma is there in poet's mind also, and this complete poem is about that particular situation only. This poem is about decisions people make during their lives and the doubts they have after making the decision. It is so easy to take any decision, but further, whether the decision proves to be the correct or not, this is the main thing. Whether a traveler in this poem, a traveler is passing through a jungle in autumn season. He comes to a point where the road is divided into two parts. A traveler is there who is going somewhere, and further what he sees that the road, he comes at a point where the road diverges into two parts, and he is baffled, he is confused which road to choose, because both the roads are wanted where, both the roads are attractive. He wants to take both roads, but being one path traveler, he cannot. He has to choose one. Thus, the poem depicts the problem of making a right choice in life also. Children, in this poem, the roads are signified. The roads are the symbol of two different choices. Sometimes in our lives also, we also want to take decision, but if we have more than one option, then we have the same dilemma in our mind also, which path to choose. We have to choose between an off beaten path and a path chosen by many people. डिलेमा क्या रहता है कि क्या हमें वो पाथ चूज करना चाहिए जो सब चूज करते हैं, या हमें डिफरेंट पाथ की ओर मूव करना चाहिए. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Here the poet is in dilemma whether he should choose the first road or the second one, because both the roads are equal. The poet stands in a situation, the poet stands at a path where two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. The poet is so much confused that where to go. He is in a situation where he cannot decide, वो चूज ही नहीं कर पा रहा that where he should go. And be one traveler long I stood. काफ़ी देर तक वो वहीं खड़े रहते हैं पोएट, और सोचते रहते हैं कि कौन सा पाथ है जो मुझे चूज करना चाहिए. And looked down one as far as I could. और अपनी उसी जगह पर खड़े होकर पोएट सीज एज फार एज ही कुड. जितनी दूर तक पोइट की नज़र जाती है वो वहाँ तक देखते रहते हैं कि कहाँ तक मुझे, किस रोड को मैं चूज़ कर सकता हूँ, मैं ये रोड मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी. मीन्स कौन सा डिसीज़न है जो मुझे चूज़ करना चाहिए, जो मुझे लेना चाहिए, और उस डिसीज़न के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. टू रोड्स, यहाँ पर ये रोड्स जो हैं वो चॉइसेस ऑफ लाइफ को दिखा रहे हैं. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. जब बहुत सारी बशेज़, बहुत सारी झाड़ियाँ
पोएट को आगे दिखाई देती हैं, जहाँ से वो रोड आगे बेंड हो जाती है, पोएट उससे आगे नहीं देख सकता। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर वो दूसरी रोड को देखता है जो बिल्कुल सेम ही लग रही होती है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं अगर इसी रोड को चूज़ करूँ तो मेरे लिए बेटर होगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रही होती है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है। चिल्ड्रन, वॉन्टेड वियर, दिस word shows that alliteration literary device has been used here. In alliteration literary device, there is a repeated sound of consonant, so w have been repeated here. So in wanted where alliteration literary device has been used, though as for that the passing there had warned them really about the same, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये भी जो रोड है जिसे मैं चूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इस रोड पर ही जाना चाहिए, ये भी वैसी ही लग रही है जैसी कि पहले वाली, इस पर भी शायद बहुत से लोग गए हैं, इस रोड को भी बहुत से लोगों ने चूज़ किया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह का टाइम है, दोनों रोड बिल्कुल सेम लग रही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अब मॉर्निंग का टाइम है, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बहुत सारे लोग इस पर चल कर गए हैं, बहुत से लोगों ने इस रोड को चूज़ किया है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, वहाँ पर ऐसा कोई फुटप्रिंट भी नज़र नहीं आ रहा। ओ आई केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, फाइनली ही थिंक्स टू चूज़, ही चूजेज द सेकेंड रोड, और फर्स्ट रोड वो किसी और दिन के लिए रख देते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर उनका डिसीज़न ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक रास्ते से कैसे दूसरा रास्ता निकलता है। वंस यू टेक एनी डिसीजन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक एंड टेक द अनदर वन। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और पोइट को भी लगता है, उसे भी ये डाउट है कि क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा। एट द एंड आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और फिर अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाकर जब उनकी काफ़ी एज हो जाएगी, उस टाइम पे वो एक साय लेंगे, एक रिलीफ भी हो सकता है, एक एंजाइटी भी हो सकती है। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, जब मैं अपने उम्र के बहुत बड़े पड़ाव पे होऊंगा, जब मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होऊंगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, उस टाइम पे मैं अपने लिए हुए डिसीज़न के बारे में दोबारा सोचूंगा कि वंस आई वॉज अ ट्रेवलर आई कुड चूज़ द अनदर वन बट आई चोज़ द फर्स्ट ऑप्शन, और आई कुड चूज़ द फर्स्ट ऑप्शन बट आई चोज़ द सेकेंड वन। उस टाइम पे एक रिलीफ भी हो सकता है। साय हेयर इंडिकेट्स एक एंजाइटी भी हो सकती है कि चलो अच्छा ही हुआ, जो डिसीज़न मेरा था वही राइट प्रूव हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब मैं बहुत ओल्ड एज में हो जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि काश मैंने पहले वाला रास्ता चूज़ कर लिया होता। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेकिन मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो बहुत से लोग चूज़ नहीं करते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और एक सही डिसीज़न और एक गलत डिसीज़न हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आता है। So students, let's have a quick review on the summary of this poem, The Road Not Taken, to understand more. In the poem, the speaker was traveling through a forest during the fall when he reached a point where the road diverged into two paths and the speaker had to decide which road to choose. एक बार poet ट्रैवल कर रहा होता है और वो रोड के उस पार्ट पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर वो रोड्स दो डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती हैं, और उनके लिए ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दैट विच रोड टू चूज़।
द डिसीजन वॉज नॉट ईजी, ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वो वहीं खड़े रहते हैं. द डिसीजन वॉज नॉट ईजी बिकॉज ही न्यू कि जो डिसीज़न मैं ले लूँगा वो ना सिर्फ आज इनफैक्ट मेरे फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा. ही विश्ड ही कुड टेक बोथ रोड्स. एवरीवन वांट्स कि दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाए, बट इट इज़ नेवर पॉसिबल. However, he knew it was impossible. उन्हें भी ये बात पता थी कि ये impossible है. He could not travel both the roads. He examined one of the roads, trying to see where it led, but he couldn't see since it bent in the undergrowth. अब पोइट वहाँ खड़े होकर एग्जामिन करते हैं कि ये रोड आखिर जा कहाँ रही है, मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, और फाइनली वो वहीं तक देख पाते हैं जहाँ तक वो बेंट नहीं होती. Finally, the speaker chose the other road, which looked as attractive as the first one, but it seemed to him that fewer people had used it. दोनों रोड एक जैसी होती हैं, दोनों इक्वली अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन पोएट chooses that road which is less traveled by the people. It was grassy and wanted wear. वो grassy होती है, काफ़ी attractive होती है. He chose the less conventional road and it implies that he wanted to do something different and not be like the अदर. यहाँ पर पोएट काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, जो कि वो रोड नहीं चूज़ करना चाहते जो सभी करते हैं. इनफैक्ट जो चैलेंजिंग रोड होती है पोएट उसे चूज़ करते हैं. The speaker hoped to return one day and take the other road, but knew that once he chose one way, it would lead to another and then another. पोइट होप करते हैं कि अगर मेरा डिसीज़न गलत हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा और दूसरी रोड को चूज़ कर लूँगा. इट सिग्निफाइज माई डियर चिल्ड्रन दैट ही थिंक्स इफ़ the decision which he is going to take would be proven wrong, then definitely he would come back. लेकिन वो इस बात को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं that one decision leads to the another one, and it is not so easy to come back in previous state. Therefore, it was unlikely that he would never go back to the road he had not taken. और उन्हें भी पता है कि जो रोड उन्होंने चूज़ नहीं की उस पर वो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगी. द poem ends with a sigh. I'll be telling this with a sigh. The sigh may imply that the speaker was not satisfied with the decision and he had made and regretted it. ये भी हो सकता है that once when he will be telling this with a sigh, जब वो ठंडी हाँ भरकर सोचेंगे काफ़ी सालों के बाद अपनी एज में कि ये मैंने क्या किया, ये डिसीज़न तो मेरा ठीक था ही नहीं. हो सकता है वो उस डिसीज़न पे पछताएं. रिग्रेटेड मीन्स पछताना, रिमोर्स करना. और इट माइट बी अ साई ऑफ सेटिस्फैक्शन शोइंग दैट ही वॉज प्लीज्ड विद हिज चॉइस. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये रिलीफ भी हो कि अच्छा हुआ मैंने इसी रोड को, इसी डिसीज़न को लिया और इसने मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ला दिए. द स्पीकर न्यू दैट चूजिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय हैड मेड ऑल द डिफरेंस. सभी लोगों ने जो रोड चूज़ की मैंने वो नहीं की और इसी से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए. इट हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ. और मेरी लाइफ पे उसका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा, मेरी लाइफ में उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया. So children, this is all about the summary and the explanation of the poem The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. Children, I advise you to learn the name of the poem and name of the poet, because many a times in extract this question has been asked to write the name of the poem and name of the poet. Once you will be habitual of learning the name of the poet, that would be easy for you to get marks through that question. And if you like this video, you have understood this poem, then please like and subscribe to the channel that is Easy Learning with Geeta Malhotra. Thank you children. Soon we'll meet again with a new chapter. Till then, goodbye.